हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 17 चैप्टर सेल्फ सरेंडर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है डिवाइन स्ट्रेंथ। Spiritual life is meant only for the strong. However, by strength, we mean not only physical strength but also mental strength and spiritual strength. By the exercise of willpower and practice of austerity, one gains tremendous inner strength. But apart from all these, there is another strength, the strength of the divine. The true devotee feels that he is under the protecting care of the Almighty Divine and he feels infinite strength. Surdas, one of the great North Indian saints of the Middle Ages, sang by the grace of the divine youth of Vrindavan, I have understood that Rama is the strength of the weak. Self surrender to the divine is in itself a mighty form of sadhana. It is not as easy as people think. What people generally can do is to pray to God and depend on Him at a different time of the day and offer their body, mind, and soul at the feet of the Ishta Devata repeatedly. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna tells Arjuna, the Lord dwells in the hearts of all beings, and by his Maya causes them to turn round and round as though mounted on a machine. Take refuge in him with all thy heart. By his grace shalt thou attain supreme peace and the eternal abode. Thus the profoundest wisdom being declared to thee by me, reflect over it fully and act as you like. When we draw ourselves away from Him, we become more egocentric and fall from the higher path. Instead of taking our stand on the ego, let us surrender to the divine and make Him the center of our consciousness, and then ethical and spiritual life become easy. We should practice prayer, intense prayer, when lower tendencies come up, and then we will find some power coming and lifting us up. हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज 17वां चैप्टर है सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण, जिसमें पहला टॉपिक है डिवाइन स्ट्रेंथ। आध्यात्मिक जीवन केवल बलवानों के लिए नहीं है। हालांकि बल से हमारा तात्पर्य केवल शारीरिक बल ही नहीं है, बल्कि इसके साथ मानसिक बल और आध्यात्मिक बल भी है। इच्छा शक्ति और तपस्या के अभ्यास से व्यक्ति की अद्भुत शक्ति जागृत होती है। लेकिन इन सब के अलावा एक और शक्ति है, वह है ईश्वर की शक्ति। सच्चे भक्त को लगता है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सुरक्षा में है और उसे असीम शक्ति का अनुभव होता है। मध्य युग के महान उत्तर भारतीय संतों में से एक सूरदास ने गाया था कि वृंदावन के दिव्य युवक की कृपा ने यह समझ लिया है कि राम निर्बलों के बल हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण अपने आप में साधना का एक शक्तिशाली रूप है। यह उतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। लोग बस यही कर सकते हैं कि दिन के अलग अलग समय पर ईश्वर से प्रार्थना करें और उन पर निर्भर रहें और अपने तन, मन और आत्मा को बार बार ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुना से कहते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से उन्हें इस प्रकार घुमाते हैं मानो वे किसी यंत्र पर आरूढ़ हों। जैसे कठपुतली बजाने वाला कठपुतलियों की को घुमाता है। संपूर्ण हृदय में उनकी शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैक ने तुम्हें गहनतम ज्ञान बताया है और इस पर पूरी तरह से विचार करो और जैसा चाहे वैसा करो। जब हम स्वयं को उससे दूर कर लेते हैं तो हम और भी अधिक अहंकारी हो जाते हैं और उच्च मार्ग से भटक जाते हैं। अहंकार पर अड़े रहने के बजाय आइए हम ईश्वर के प्रति समर्पण करें और उसे अपनी चेतना का केंद्र बनाएं, और फिर नैतिक और आध्यात्मिक जीवन आसान हो जाता है। हमें प्रार्थना का अभ्यास करना चाहिए,
जब निम्न प्रवृत्तियां उभरें तो गहन प्रार्थना करनी चाहिए और तब हम पाएंगे कि कुछ शक्ति आ रही है और उत्थान हो रहा है। And now the next topic is egotism, the main cause of suffering. People very often neglect or forget God's grace. They become overconfident in their own strength and become careless. This may even lead to arrogance. There is a funny story in our old books. Once there was a tiny mouse in the hermitage of a sage. One day a cat fell upon it. The sage took pity on it and transformed it into a cat. Then some dogs tried to tear this new cat to pieces, and so the sage changed it into a dog. The poor dog was persecuted by a leopard, and so the sage performed it into a tiger. But when it became a tiger, it wanted to kill the sage himself. Then the sage said, "Alright, just be the old mouse again." A similar thing happens in the case of spiritual aspirants too. Divine grace is showered on them, which purify them or to a certain extent, and they are able to attain a certain amount of concentration and freedom. But then they become egotistic, begin to think too highly of their attainment, and become careless or go to the extent of abusing and reforming the world. Then suddenly the grace is withdrawn, and then they find themselves alone facing a terrible void. We should all be in mind that those who really and truly follow the spiritual path are less egocentric and more selfless, kind and considerate towards others. We have to be givers and not beggars. When it comes to material things, most of the people are beggars. They want so many things from others, and yet they are egotistic. The less the ego, the greater the joy and peace, and the better our work. Do not think lightly of your spiritual blessings. You need not constantly brood over your weakness and past mistakes, but should cultivate alterness of mind. Constant discrimination is essential even in the path of devotion. Constant alternates of mind is essential to profit by the blessing that God is showered on us. As Sri Ramakrishna has said, if you walk one step towards God, He comes to you 10 steps. तो सेकंड पॉइंट है अहंकार दुख का मुख्य कारण है। लोग अक्सर ईश्वर की कृपा को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। वे अपनी शक्ति पर अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। इससे अहंकार भी पैदा हो सकता है। और हमारे पुराने ग्रंथों में एक मज़ेदार कहानी है जिसमें कि एक बार एक ऋषि के आश्रम में एक छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन एक बिल्ली उस पर टूट पड़ी। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे बिल्ली बना दिया। फिर कुछ कुत्तों ने इस नई बिल्ली को नोचने की कोशिश की तो ऋषि ने उसे कुत्ता बना दिया। बेचारे कुत्ते को एक तेंदुए ने सताया तो ऋषि ने उसे बाघ बना दिया। लेकिन जब वह बाघ बन गया तो उसने ऋषि को ही मार डालना चाहा। तब ऋषि ने कहा कि ठीक है, फिर से वही पुराना चूहा बन जाओ। आध्यात्मिक साधकों के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। उन पर ईश्वरी कृपा बरसती है और उन्हें एक हद तक शुद्ध करती है कि वे एक निश्चित मात्रा में एकाग्रता और स्वतंत्रता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन फिर वे अहंकारी हो जाते हैं और अपनी उपलब्धियों को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं और लापरवाह हो जाते हैं, या फिर दुनिया को गाली देने और सुधारने की हद तक चले जाते हैं। फिर अचानक कृपा वापस ले ली जाती है और वे खुद को अकेला पाते हैं, एक भयानक शून्य का सामना करते हुए। हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सचमुच आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं वे कम अहंकारी होते हैं और दूसरों के प्रति अधिक निस्वार्थ, दयालु और विचारशील होते हैं। हमें दाता बनना चाहिए, ना कि भिखारी। भौतिक वस्तुओं के मामले में अधिकांश लोग भिखारी होते हैं। दूसरों से तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फिर भी वे अहंकारी होते हैं। अहंकार जितना कम होगा, आनंद और शांति उतनी ही अधिक होगी और हमारा कार्य भी उतना ही बेहतर होगा। अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद को हल्के में ना लें।
आपको अपनी कमजोरियों और पिछली गलतियों पर लगातार चिंतन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मन की सजगता विकसित करनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में भी निरंतर विवेक आवश्यक है। ईश्वर द्वारा बरसाई जा रही कृपा का लाभ उठाने के लिए मन की निरंतर सजगता आवश्यक है। श्री रामकृष्ण जैसे कहते हैं कि अगर तुम एक स्टेप भगवान की तरफ जाते हो तो भगवान तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट सफरिंग इनटू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। True devotees of God do not pray for wealth or material benefits. जो सच्चा डिवोटी होता है वह भगवान से अपनी धन के लिए या मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए प्रे नहीं करता। एंड दे डू नॉट इवन प्रे फॉर द रिमूवल ऑफ सफरिंग। यहाँ तक कि वह अपनी सफरिंग को, अपने दुख दर्द को भी रिमूवल के लिए प्रे नहीं करता। व्हाट दे प्रे फॉर इज स्ट्रेंथ टू बियर देयर सफरिंग। वो बस यही प्रार्थना करता है कि उसे ये दुख सहने की शक्ति मिले। Since we are going to have unpleasant experience anyway, it is better to have them utilized for higher spiritual life. Nobody can avoid pain, suffering, humiliation in some form of or other in his life, as it is led these guide us to a higher pure purpose. Let us use them as stepping stones to the divine life. This does not mean that we should go out of way and seek troubles for ourselves, as some people try to do. We should court neither suffering nor pleasure, but seek the divine alone, which is beyond both. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें हमारी लाइफ में जो भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उनको हमें हमारी हायर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। और कोई भी अपनी सफरिंग को, अपने दर्द को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अपने ट्रबल्स को हमारे लिए ज़्यादा ढूंढना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें ना तो अपनी सफरिंग पे ज़्यादा जाना है, ना हमें अपने प्लेज़र की ओर ज़्यादा ढूंढना है। हमें सिर्फ अपने डिवाइन की खोज में जाना है, जो इन दोनों से बहुत ज़्यादा परे हटके है। Now next topic is karma and divine grace. Certain forms of karma are to be worked out through suffering. So when the latter comes, we should feel somewhat relieved. For suffering indicates that so much of the burden of karma is reduced. Besides, the helplessness brought about by suffering may be utilized spiritually by practicing self-surrender to the divine all the more. In pain and pleasure, in life and death, the Lord is our own. He is the soul of our soul, the life is our lives. Sri Ramakrishna used to say that disease are the taxes we have to pay for living in the body. We have to pay these taxes sometimes in heavy installments, and then for sometimes there may be a respite. The master often heard to say during his last illness, let the body feel the pain, but oh my mind, do thou remain in bliss. तो अगले टॉपिक में कर्म और ईश्वरीय कृपा। कुछ प्रकार के कर्मों को कष्टों के माध्यम से ही भोगना पड़ता है, इसलिए जब भी कष्ट आते हैं तो हमें कुछ राहत महसूस होनी चाहिए, क्योंकि कष्ट इस बात का संकेत है कि कर्म का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके अलावा कष्टों से उत्पन्न असहायता का उपयोग आत्मसमर्पण का अभ्यास करके आध्यात्मिक रूप से किया जा सकता है। ईश्वर के प्रति और भी अधिक दुख और सुख में, जीवन और मृत्यु में प्रभु हमारे अपने हैं। वे हमारी आत्माओं की आत्मा हैं, हमारे जीवन का जीवन हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बीमारियां वे कर्ज हैं जो हमें शरीर में रहने के लिए चुकाने पड़ते हैं। हमें ये कर जो टैक्सेस हैं कभी कभी भारी किश्तों में भी चुकाने पड़ते हैं, या फिर कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। अंतिम बीमारी के दौरान गुरु अक्सर कहते सुने जाते हैं कि शरीर को पीड़ा होने दो, लेकिन हे मेरे मन, तू आनंद में रह। इस तरह से हम सभी को वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं। हम किसी चीज़ की कामना करते हैं और वह हमें मिल जाती है, और उसके साथ ही उससे अभिन्न रूप से जुड़ी अच्छाई और बुराई भी।
हम सुख के कुछ रूपों की तलाश करते हैं और फिर जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुख दुख का मुकुट पहने हुए मनुष्य के सामने प्रस्तुत होता है। हमें एक के बिना दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति की कामना करते हैं। हम अपनी इच्छा की वस्तु प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उससे जुड़ी परेशानियों को भी हमें ही पाना होता है। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे अतीत और वर्तमान की सांसारिक इच्छाओं का ही परिणाम है। इसलिए हमें यथासंभव इच्छा रहित होना सीखना चाहिए और स्वयं द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए और फिर उससे ऊपर उठना चाहिए। और इस प्रकार हम जहाँ भी होंगे प्रभु के ही बन के रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्ले ऑफ डिवाइन मदर। एवरीथिंग इज द प्ले ऑफ द डिवाइन मदर. She comes to us in different forms as the teacher and the students, as the friend and the enemy. Let us then play our part as best we can, at the same time witnessing our play with detachment. Whatever we see around us, whatever happens to us, is the manifestation of her sport, her leela, her joy. Sometimes the devotee says, "Mad woman, what are you doing?" When he sees her indulging in one of her prank, playing with the human heart, producing pain and pleasure, sometimes we do not find any rhyme or reason in the whole cosmic process. But this whole cosmic process, in its madness, its cruelty, its pain and pleasure, is but the manifestation of the mad, frolicking spirit of the mother, of the joy she has in her play. We too should enjoy her play and take it as play, performing part as actors, but knowing that we really have nothing to do with it, that it is all for the sake of the great fun of the game. तो नेक्स्ट टॉपिक है दिव्य माँ की लीला। सब कुछ दिव्य माँ की लीला है। वे हमारे पास विभिन्न रूपों में आती हैं, गुरु और शिष्य के रूप में, मित्र और शत्रु के रूप में। तो आइए हम अपनी भूमिका यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से निभाएं और साथ ही अपनी लीला को अनासक्त भाव से डिटैच होकर के देखते रहें। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है, वह उनकी क्रीड़ा, उनकी लीला, उनके आनंद का प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण मीन्स मैनिफेस्टेशन है। कभी कभी भक्त कहता है कि पगली तुम क्या कर रही हो, जब वह उसे अपनी किसी शरारत में लिप्त मानव हृदयों के साथ खेलते हुए पीड़ा और आनंद उत्पन्न करते हुए देखता है। कभी कभी हमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया में कोई तुक या कारण नहीं मिलता, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया अपने पागलपन, अपनी क्रूरता, अपने दर्द, आनंद के प्रक्रिया में माँ की उन्मत्त चंचल आत्मा की, उनके खेल में उनके आनंद की अभिव्यक्ति है। हमें भी उनकी क्रीड़ा का आनंद लेना चाहिए और इसको एक खेल की तरह लेना चाहिए। अभिनेताओं के रूप में भूमिकाएं निभानी चाहिए, लेकिन ये जानते हुए कि वास्तव में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कि यह सब खेल के महान मनोरंजन के लिए है। श्री रामकृष्ण को विशेष रूप से दिव्या माँ द्वारा पतंग उड़ाने वाला एक गीत पसंद था। हम सभी पतंग हैं, जिन्हें की माँ के द्वारा आकाश में उड़ाया जा रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम प्रैक्टिकल सजेशंस. Do not make a blueprint of your life. That does not mean you should not prepare a general plan. Plan your future course in a general way, but then leave everything to the Lord. Let Him make you do what He likes. Let us wish strongly for spiritual progress and spiritually experience, but let us leave the details to the divine. As we do not always see things clearly, we cannot but think about a future and make plans. But all these are to be ultimately left to the divine. We should gradually learn to be in tune with the divine and follow the divine will. If we sincerely persist in this, we will come to a stage when our whole being will be in tune with the divine. Remember this, if one practices complete self surrender, one cannot take any wrong step. People often glibly say, "I have left everything to God," and then they go and do as they please.
A man who is attached to the objects of the world or to his own desires and prejudices cannot think of self surrender. We should always note that without a certain minimum of detachment, self surrender is impossible. For complete self surrender, complete detachment is necessary. You know the story of Job in the Old Testament? He lost everything he had, but only said, "The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." We should give to the deserving people whatever we can, but we should exercise great care even in making gifts, whatever they may be. Do not give things away discriminately in the name of self surrender. The true devotee gets the right direction at the right time about how, when, and to whom gifts are to be given. Do not weaken yourself by being too self critical. People go on complaining about their life because they allow the causes of their complaints to continue. Unless we make any inner change, unless we overhaul our mind, it will go on giving troubles to us. Do you know Sri Ramakrishna parable of the pet dogs? A dog had been to so much fondled in the beginning that it had made a habit of jumping on to its master's body. Later on, the master wanted to control this, but the dog would not obey. Even when it was beaten, it tried to jump onto the master's body. Our mind is like that dog. It has been pampered so long that it is difficult to control it and surrender it at the feet of the Lord. But through repeated practice, we have got to make the mind surrender itself to God. First of all, bring about a transformation in your own life, at least to some extent through regular sadhana, and then take up the ideal of work and worship. Only you should see that you do not take up more work than you can joyfully do. In the beginning, it is not possible to maintain constant remembrance of the Lord, so offer all of that you do to Him at the beginning and at the end of the work, and if possible, while you are engaged in work. Work becomes mechanical only when you forget the goal of your life. When you forget that whatever you do is a means to realizing God. It is no use working like a machine. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कुछ व्यवहारिक सुझाव, सम प्रैक्टिकल सजेशंस। अपने विचार का जो खाका मत बनाइए, उसको ब्लूप्रिंट मत बनाइए उसका। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई सामान्य योजना नहीं बनानी। अपने भविष्य की सामान्य योजना बनाइए, लेकिन फिर सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। उसे आपसे वही करने दीजिए जो उसे पसंद है। यह याद रखें कि यदि कोई पूर्ण समर्पण का अभ्यास करता है तो वह कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। लोग अक्सर सहजता से कह देते हैं कि मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, और फिर वे मनमानी करते हैं। जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं या अपनी इच्छाओं और पूर्वाग्रहों में आसक्त है, वह समर्पण के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित मात्रा में वैराग्य के बिना समर्पण असंभव है। पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण वैराग्य आवश्यक है। आपने जॉब की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिसमें कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन केवल इतना कहा कि प्रभु ने दिया तो प्रभु ने ले लिया। प्रभु का नाम धन्य हो। हमें योग्य लोगों को वह सब कुछ देना चाहिए जो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें दान देते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। आत्मसमर्पण के नाम पर अंधाधुंध दान न करें। सच्चा डिवोटी वही है जो सही समय पर सही दिशा निर्देश के अनुसार कब, कैसे और किसे उपहार दिया जाना चाहिए, यह सब देखता है। अभी आपको शांति प्राप्त करने के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक आत्म की आलोचना करके स्वयं को दुर्बल ना बनाएं, और लोग अपने जीवन के बारे में जैसे लगातार शिकायतें करते रहते हैं, क्योंकि वे अपनी शिकायतों के कारणों को जारी रहने देते हैं।
जब तक हम आंतरिक परिवर्तन को नहीं करेंगे तब तक अपने मन का कायाकल्प नहीं कर पाएंगे और यह हमें कष्ट देता रहेगा। क्या आप श्री रामकृष्ण के पालतू कुत्ते के दृष्टांत को जानते हैं? एक कुत्ते को शुरू में इतना लाड़ प्यार दिया गया कि उसने अपने मालिक के शरीर पर कूदने की आदत बना ली। बाद में मालिक ने इसको नियंत्रित करना चाहा, लेकिन कुत्ता नहीं माना, यहाँ तक कि उसको पीटा भी गया। तब भी वह मालिक के शरीर पर कूदने की कोशिश करता रहा। हमारा मन भी उस कुत्ते के समान है कि इसे इतने लंबे समय से लाड़ प्यार दिया गया है कि इसे नियंत्रित करना और इसे भगवान के चरणों में समर्पित करना कठिन है। लेकिन बार बार अभ्यास करके हमें मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। सबसे पहले नियम साधना के माध्यम से कम कुछ हद तक अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा और फिर कर्म और उपासना के आदर्श को अपनाना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना काम खुशी के साथ कर सकते हैं उससे ज़्यादा ना करें। शुरुआत में प्रभु का नियंत्रण स्मरण बनाए रखना संभव नहीं होता, इसलिए जो कुछ भी आप करते हैं उस कार्य के आरंभ और अंत में यदि संभव हो तो करते समय प्रभु को समर्पित करते रहें और आप अपने काम में लगे रहें। और काम तभी यांत्रिक हो जाता है जब आप अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं और जब आप यह भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वह जीवन की प्राप्ति का एक साधन है। Work and worship must go hand in hand, and work done in the right spirit is acceptable to the divine as much as devoted worship consisting of prayer, meditation, etc. My teacher Swami Brahmananda gave me this instruction: before you begin to work, remember the Lord and offer salutation to Him. Do the same as at interval in the course of the work and also after you finish it. Take the divine name, think of the indwelling spirit, feel the holy presence, surrendering your will to His, and be at peace. Pray to the Lord for bringing new light and strength to your mind and heart. What else can you do but take things as they are and try to do your best? Whether you know it or no, your past, present, and future rest with the Lord. The best course for us is to play our part as well as we can and surrender ourselves to Him as much as possible. Everyone has to pass through periods of great uncertainty. Whenever you feel anxious for some reason or other, repeat the name of the Lord, think of Him, and practice self surrender. I am sure this method will bring you great strength and peace in due course. If you wish to have peace of mind, do not expect anything from anyone. If you get something, be thankful, and if not, thank God. And know in your heart of hearts that the Lord alone is your own. As the soul of your soul, He cannot leave you nor you Him. So instead of allowing ourselves to be completely upset, we have to practice japa, dhyana, remembering the Lord even when we are actively engaged in our duties and offering the fruits of all our labors to Him. The practice of self surrender passes through three stages. Number one, whether it is a spiritual practice or performance of duties, at first we do them in an egocentric way. Number second, next we learn to offer the fruits of our work to the Divine Spirit. And third point, in the last stage, we perform everything for pleasing the Lord. As our mind becomes purer, we feel the divine presence, and it is only then that we feel the Lord is like the operator and we are like machines. तो ये था चैप्टर सेल्फ सरेंडर। अब हमारा जो इस मेडिटेशन स्पिरिचुअल बुक का सेकंड पार्ट शुरू होगा वो होगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसमें सेकंड चीज़ है टेक्निक्स क्या क्या इसमें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। कर्म और आराधना साथ साथ चलते हैं और सही भावना से किया गया कर्म ईश्वर को उतना ही स्वीकार्य होता है जितनी की प्रार्थना, ध्यान आदि से युक्त समर्पित आराधना। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद ने मुझे यह निर्देश दिया था, कर्म शुरू करने से पहले ईश्वर को स्मरण करो और उन्हें नमस्कार करो। कर्म करते समय और उसके समाप्त होने के बाद भी यही क्रियाएं करो।
ईश्वर का नाम लें, अंतरात्मा के बारे में सोचें, पवित्र उपस्थिति का अनुभव करें। अपनी इच्छा को ईश्वर को समर्पित करो। शांति का अनुभव प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके मन और हृदय में नया प्रकाश और शक्ति लाएं। आप और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि चीज़ों को जैसी है वैसी ही स्वीकार करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। चाहे आपको पता हो या ना हो, आपका भूत, वर्तमान, भविष्य प्रभु के हाथ में है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी भूमिका यथासंभव अच्छी तरह निभाएं और जितना हो सके खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। हर किसी को बड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ता है। जब भी आप किसी कारण से चिंता महसूस करें, भगवान का नाम जपें, उनका चिंतन करें, समर्पण का अभ्यास करें। मुझे विश्वास है कि यह तरीका आपको समय के साथ अपार शक्ति और शांति प्रदान करेगा। प्रभु के कार्य में सेवा करना ही आनंद है और मुझे भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब उन्हीं में निहित हैं। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है उनको स्मरण करना, स्वयं को उनके प्रति समर्पित करना और उनकी असीम उपस्थिति, प्रेम और आनंद में लीन हो जाना। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखें। यदि कुछ मिले तो आभारी रहें और यदि ना मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने हृदय में ये जान लें कि केवल प्रभु ही आपके अपने हैं, आपकी आत्मा के रूप में। वह आपको नहीं छोड़ सकते और न ही आप उन्हें। हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपसेट होने की बजाय प्रैक्टिस करनी चाहिए जप की, ध्यान की और ईश्वर के स्मरण की। और जब हम सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और अपने सभी परिश्रमों का फल उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो वे हमें परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आत्मसमर्पण का अभ्यास 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, चाहे यह आध्यात्मिक साधना हो या कर्तव्यों का पालन, पहले हम उन्हें अहम केंद्रित तरीके से करते हैं। इसके बाद हम अपने कर्म का फल ईश्वरीय आत्मा को अर्पित करना सीखते हैं। तीसरा, अंतिम चरण में हम सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाता है, हमें दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और तभी हमें यह एहसास होता है कि भगवान संचालक हैं और हम मशीन। तो आत्मसमर्पण के चैप्टर में इतना ही। कल हम जानेंगे मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में पार्ट 2 में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसमें 2 होगा टेक्निक्स। तब तक के लिए नमस्कार।